السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج تھنکنگ ایبلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ صلاحیت کیسے ہم اس کو بہتر کر کے امپروو کر کے زندگی میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے، جسمانی اور ذہنی، اور تمام خوبیوں کا مرکز ہمارا دماغ ہے، اور دماغ کا فنکشن سوچنے کے عمل سے شروع ہوتا ہے۔ سوچنے کی ایبلٹی سب سے زیادہ پاورفل ایبلٹی ہے، اور تمام دوسری ایبلٹیز اسی ایبلٹی کی محرون منت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ 3 آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز کے ساتھ پیدا کیا۔ گویا اللہ کی تمام مخلوقات میں سے انسان اشرف ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اس کی تھنکنگ ایبلٹی ہے، اور اسی ایبلٹی کے استعمال پر اللہ تعالیٰ نے بار بار زور دیا ہے۔ دنیا میں ہر شعبہ میں ترقی کا راز اس شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کی محنت اور سوچنے کا انداز ہے۔ کوئی بھی انوینشن ہو، خواہ وہ آسمان کی بلندیوں کے بارے میں ہو، یا سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کے بارے میں ہو، یا سطح زمین پر موجود اشیاء کے بارے میں ہو، سارا کچھ انسانی دماغ کی سوچنے کی صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ یعنی یہ ایبلٹی جو ہے، یہ سارا کچھ اسی کا رزلٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس صلاحیت سے نوازا ہے، اور پھر اس ایبلٹی کی یا اس صلاحیت کی خوبی کیا ہے کہ آپ جتنا زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ اتنی زیادہ بڑھتی ہے، اور اس کی کوالٹی بہتر یعنی اعلیٰ سپیریئر ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اپنی اس صلاحیت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ ناظرین، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اخروی دنیا میں بھی یہ سوچنے کی ایبلٹی جب آپ استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ طالب علم ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، یا آپ کسی بزنس میں ہیں، آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، اور آپ اپنی تھنکنگ ایبلٹی ڈیولپ کریں یا مضبوط کریں۔ کچھ ہی دیر میں آپ اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ کامیابیاں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی، آپ کچھ نہ کچھ نیا کر رہے ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو بہت کانفیڈنٹ محسوس کریں۔ جو ہی یہ آپ کی تھنکنگ ایبلٹی مضبوط ہوگی، تو یہ میرا تجربہ ہے، اور میں نے بہت سے سیمینرز یہاں پاکستان کے اندر اور باہر بھی کنڈکٹ کرتے ہوئے جب جو شرکاء تھے ان کو ایکسرسائزز دیں، تو ایون 2 ہفتوں کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے آپ کو مختلف اور بہتر انسان محسوس کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ جب آپ تھنکنگ ایبلٹی ڈیولپ کریں گے تو صرف آپ اپنے لیے نہیں، ایون آپ دوسروں کو اچھے سے اچھا مشورہ دینے کے پوزیشن میں ہوں گے، جو کہ آپ کے لیے کریڈٹ کی بات ہوگی۔ چلیں، اب آپ میری اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں۔ آپ کو تھنکنگ کے لیے کیا چاہیے، یعنی کہ ریکوائرمنٹ اس کی کیا ہے تاکہ آپ تھنکنگ ایبلٹی کو ڈیولپ کر سکیں۔ آپ کو 2 چیزیں چاہیے، ریلیونٹ نالج اور ایکسپیرئنس۔ یہ ناظرین، ریلیونٹ لفظ بہت اہم ہے۔ آپ کسی ایک شعبے کا انتخاب کریں، اور جب انتخاب کریں تو اس شعبے کا انتخاب کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہو، آپ کے مزاج اور شخصیت کے مطابق ہو، جس میں کام کر کے آپ خوشی محسوس کرتے ہوں۔ اور پھر ریلیونٹ نالج حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ جو آپ نے شعبہ منتخب کر لیا، پھر اس شعبے میں جو پہلے سے موجود نالج ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے 2 جو ہے وہ میجر سورسز ہیں۔ پہلی جو ہے وہ
डॉक्यूमेंटेड सोर्स है। डॉक्यूमेंटेड में फिर आ जाएगा प्रिंट बेस्ड है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। यानी आपके शोबे से मुतल्लिक इस दो जो मीडिया है, डॉक्यूमेंटेड और इलेक्ट्रॉनिक, इसमें जो मालूमात हैं वो हासिल करने की कोशिश करें। और दूसरा जो है ये एक टैसिट नॉलेज है। ये टैसिट क्या है? यानी आपके शोबे से मुतल्लिक जो लोग हैं उनके पास जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ये एक टैसिट नॉलेज है। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे मुकालमा कर सकते हैं, और जब आप इस नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका यानी एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको तजर्बा होता जाएगा। और जब आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपके जहन के अंदर मुख्तलिफ आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे और आप अपने आप को महसूस करेंगे। जब आप उस मकाम पे पहुंचेंगे तो आप यकीन करें सबसे पहले एक जो आप हैवी सा महसूस करते हैं आप वो महसूस नहीं करेंगे। आपके अंदर तब्दीली आएगी और उससे जबकि आपको नॉलेज हासिल होगा और इस्तेमाल करेंगे तो ये तजर्बा हासिल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि उस शोबे में आपकी इनसाइट डेवलप होगी, यानी आप अपने शोबा के मुख्तलिफ पहलुओं को बहुत अच्छे तरीके से जानने लगेंगे, क्योंकि रेलेवेंट नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है ये आपकी इनसाइट डेवलप करने की एक मजबूत बुनियाद रखता है। और फिर क्या होगा, यानी जब इस मकाम पे आप पहुंच जाएंगे फिर ये होगा कि कहते हैं कि इनसाइट क्रिएट्स विजन। आपकी अपने शोबे में कुछ करने की उमंग जाग उठेगी, आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आप सोचना शुरू कर देंगे कि मैं ये नया करूं, मैं ये नहीं मैं वो करूं। आपके जहन में नए से नए आइडिया आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप एक विजनरी शख्स बन जाएंगे, क्योंकि जब आपके पास इनसाइट डेवलप कर लेंगे आप अपने शोबे की, तो फिर आप मज़ीद उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, यानी आप विजनरी हो जाएंगे। और फिर जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, वी हैव इंडीड क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट ऑफ मोल्ड्स, कि हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया, तो आप महसूस करेंगे कि शायद वो आपके बारे में कहा गया है। ये बिल्कुल आपको महसूस होगा कि ये कुरान पाक में अल्लाह ताला मेरे बारे में कह रहा है, क्योंकि एक शोबे में इल्म हासिल करने के बाद आप अपने आप को एक महसूस करेंगे कि आप दूसरों से बेहतर जानते हैं। और नाज़रीन, साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या करते हैं, क्योंकि ह्यूमन लर्निंग पे जितने तजर्बे हैं बहुत ज़्यादा, ये लेट 50s में और अर्ली 60s में तो पीक पे थे। तो उनके मुताबिक ये जो थिंकिंग एबिलिटी है इसको डेवलप जब करना हो तो वो इसको दो टाइप्स में उन्होंने तकसीम किया। एक को वो कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्ज होता है इस तरह किसी चीज़ का ऊपर एक के जाके मिल जाना, यानी बहुत सी नीचे चीज़ें हैं, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, कुछ आप नया करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो आप एक सलूशन की तरफ जा रहे हैं। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग वो होती है कि आप एक सही सलूशन जो है वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरा क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ये क्रिएटिव थिंकिंग है। इसमें ये होता है कि बहुत से सॉल्यूशंस आउट ऑफ बॉक्स आप सोचते हैं, एक पहले से मौजूद कोई राइट सॉल्यूशन नहीं, आप नई से नई कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो डाइवर्जेंट थिंकर होता है, क्रिएटिव थिंकर होता है, उसकी एक खूबी ये भी है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग। ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई आप स्पाइनलेस किस्म के बंदे हैं, नो। जब आप कुछ सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं, अपने
स्टडीज़ के बारे में, आप पीएचडी कर रहे हैं, थीसिस के बारे में सोच रहे हैं, कारोबार को बढ़ा रहे हैं, आप साइंटिस्ट हैं, कोई तजर्बे कर रहे हैं। मैं आपको एडिसन की यहाँ मुझे मिसाल याद आ गई कि बल्ब उसने ईजाद किया, उसने अपने तजर्बात जो है 999 मरतबा किए, और हर दफ़ा जब वो अपने तजर्बे में फ़ेल होता और वो बल्ब ना बन पाता तो एक नया रास्ता इख्तियार करता। वो रिजिड नहीं था, फ्लेक्सिबिलिटी थी उसके अंदर, और फिर 1000वीं मरतबा पे जाके उसने ये बल्ब जो है ना वो ईजाद किया। इस तरह सोशल साइंसेस में भी है कि जब आप कामयाबी हासिल ना करें और ब्लॉक सामने देखें, कोई हिंड्रेंस देखें, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं अपने विजन के मुताबिक वो अचीव ना कर पाएँ, तो फिर थोड़ा सा शिफ्ट करें और फिर और सोचें। और ये है फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, यानी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्रिएटिव थिंकर जो हैं ये डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, और यही लोग जो ना विजनरी होते हैं। क्या आप विजनरी नहीं हो सकते? यकीनन हो सकते हैं। आप ये प्रोसेस में अपने आप को डाल के आप देखें, एक जगह पे ब्लॉक होगा, दूसरा आप काम करने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर एक मज़ीद कॉन्फिडेंस जो ना वो पैदा होगा। तो जब आप थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कर लें तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या करें आप कि आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एबिलिटी पैदा करें। अब आप पूछेंगे जी ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एबिलिटी क्या होती है? तो ये एबिलिटी ये है कि फ्यूचर के बारे में सोचना एक हॉलिस्टिक अंदाज में, यानी तमाम जो वेरिएबल्स हैं, तमाम हालात जो हैं उनको सामने रखते हुए फ्यूचर के बारे में सोचना। आप देखें कि कंप्यूटर के बाद जब इंटरनेट आया तो इसने दुनिया ही बदल के रख दी है। सिर्फ एक शोबे में तकरीबन बेशुमार शोबों में बहुत सी तब्दीलियाँ आई, और जब आपने कुछ मुख्तलिफ करना है, कामयाब होना है और अपना नाम पैदा करना है, ख्वाह पढ़ाई में करना है, ख्वाह बिजनेस में करना है, या आप कोई रिसर्च कर रहे हैं उसमें करना है, तो फिर आप ये देखें कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद ये शोबा, यानी आपका शोबा जो है वो कैसा होगा। और दूसरे फैक्टर्स जो हैं उनको सामने रखेंगे आप कि उसका इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसके क्या असरात होंगे, तो आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान होंगे। स्ट्रेटेजिक थिंकर कौन है? जिसके अंदर फिर ये एबिलिटी हो जाएगी कि आप सिचुएशन का एनालिसिस कर सकें, फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, आप उसका एनालिसिस करके फिर सिंथेसाइज करके और फिर अपना एक एजुकेशनल कैलकुलेशन करें कि कल को दुनिया इस तरह की होगी, और फिर उसके मुताबिक जो है ना वो आप काम करें तो कामयाबी किसके पास होगी? आपके पास होगी। तो क्या ये आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको करके देखें, दुनिया के कामयाब तरीन इंसान आप होंगे। और फिर उसके बाद क्या है, एक और एबिलिटी है जिसको हम कहते हैं लीन थिंकिंग। फिर आप लीन थिंकिंग डेवलप करें, ख़ास तौर पे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड लगे हुए हैं, कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, कोई आपका बिजनेस की बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस में हैं, गवर्नमेंट में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो लीन थिंकिंग डेवलप करें। ख़ास तौर पे अगर ये आप एंटरप्रेन्योर्स हैं तो ये लीन थिंकिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कामयाबी के लिए आप समझें कि ये कामयाबी की कुंजियां हैं, कीज़ हैं। ये क्या है लीन थिंकिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, डिटेल में इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने की एक प्रैक्टिस जो स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान होंगे। आज के लिए इतना ही। खालिद इकबाल को इजाज़त दीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, घंटी के जो निशान है उसको भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की इंटीमेशन आपको वक्त पर मिल जाए।